Good morning, dear student. This is class 12 and I am Anjali Singh. Now, today we are going to start a very fresh topic that is not related with the previous topic. It's actually a new fresh topics. That is, first is magnetic field. Actually, we are going to, the topic name is terms in magnetization. Today we are going to read few terms which will be used in magnetization as well as little numericals means short numerical will be totally based on these five topics. Okay, more topics are also there, but these I took only these five topics. These are the main topic. Okay, and with these topics you can make a new formulas also. So the first topic is magnetic field strength, second is magnetizing force, third is magnetic permeability, fourth is intensity of magnetization, fifth is magnetic susceptibility. There are few terms which is very new for you. So the first, we are going to take the first topic, that is magnetic field strength. What is magnetic field strength? When we are saying this, this field has more strength. This field has more strength. ध्यान से सुनिएगा, I am going to say the definition. After that, I am going to give you the formulas. Okay. Magnetic field strength means when we are keeping a small unit positive charge. When we are keeping a small unit positive charge and this unit positive charge moves with the velocity v and experiences a force in the magnetic field which is acting perpendicular to it. This magnetic field strength is also known as Lorentz force. क्लियर स्टूडेंट? इसको हम और क्या बोल सकते हैं? लॉरेंज फोर्स. F is equals to Q B into B. समझ में आ रही है बात? Why this is Q naught? Q naught means a unit positive charge. This Q naught means the unit positive charge. When we are keeping a unit positive charge which is moving with velocity v and experiences a force perpendicular to the direction of magnetic field. So that time we are saying this will tells you the magnetic field strength. Clear student? This tells you the magnetic field strength. बात समझ में आ रही है सबको? You know this SI unit is Tesla as well as another unit is Gauss. SI unit is Tesla and another unit is Gauss. Clear student? ध्यान से देख लो. This is the smallest form of this. Okay, this is the smallest form of this. Through this we can also know the another formula that will be flux. Here flux is also passing, that is B dot A, or you can write a BA cos theta or phi. BA cos theta or cos phi. Magnetic flux. This is also passing perpendicular to the field, and this is also tells you about the field strength. This flux is also tells you or measure the field strength. Clear student? Clear to you this first topic? ये फर्स्ट टॉपिक अभी सबको समझ में आ गया. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. दिस इज आल्सो नोन एज लॉरेंज फोर्स. ओके, लॉरेंज फोर्स का क्या है ये मैंने समझा दिया. अभी सबको क्लियर हो गया? इसको यहां पे लिख सकते हैं BA cos phi लिख देते हैं. ओके, फॉर द एंगल. नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? What is magnetic force, or you can say magnetic intensity? What is magnetic force? इसको magnetic force और magnetic intensity भी कहते हैं. क्या कहते हैं? और magnetic intensity. Okay, magnetic intensity. ठीक है, इसको या तो force बोल दो या तो magnetic intensity. For this, you know what is the value of magnetic field? This B is equals to mu n I. हम लोगों ने पढ़ लिया है when the magnetic field, this is in the case of solenoid or toroid. ठीक है, B is equals to mu n I. This n I
is equals to H. This Ni is equals to H means this Ni is equals to H. Student, please copy this. This Ni is equals to H means the degree of magnetizing field can magnetize a material. Degree of magnetizing field can magnet means एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मटेरियल को मैं रखती हूँ तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखती हूँ तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा, वो क्या होगा उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स। इसका यही मतलब है कि अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो कितना डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, सो दैट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, V is equals to mu H और H is equals to V by mu। सबको समझ में आ गया ये? देखो ध्यान से, H is equals to V by mu, समझ में आ गया? Yes, this is yes, समझ में आ गया? This is your I can write but not required also. This is a vector quantity. This is your which type of quantity? Vector quantity. ठीक है, समझ में आ गया? How much a magnetic material can magnetize when we keep it in a magnetic field? Clear student? ये समझ में आ गया? Magnetic force, ठीक है? Now magnetic permeability. अभी किसकी बारी आ गई है? Magnetic permeability. ठीक है, this will be shown by mu. Magnetic permeability. मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसका क्या फॉर्मूला है, V is equals to mu by H। mu is equals to, इसी से हम ले लेते हैं, इसी से हमने फॉर्मूला ले लिया है, mu is equals to V by H means it is the ratio of permeability, tells you the ratio of magnetic field induction, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इट टेल्स यू इट्स अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, सिर्फ इतना ही, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली यू कैन पुट द फॉर्मूला mu is equals to V by H। बात समझ में आ रही है? mu is equals to V by H हो जाएगा। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टू द मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के साथ एक और चीज तुम्हारी एडेड है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, मैं लिख रही हूँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। थोड़ा समझाना इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव, जब भी रिलेटिव शब्द जुड़ जाए बेटा तुम्हारे साथ, जब भी रिलेटिव शब्द जुड़ जाए तुम्हारे साथ, तो एक चीज का ध्यान देना, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को शो करने के लिए आर यूज करते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, म्यू बाई म्यू नॉट। किसके साथ ऐड हो जाएगा, म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट का क्या मतलब होता है, मीन्स द परमेबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। दिस म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ओके, परमेबिलिटी में लिख देंगे बस ऐसे कि परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ये किसके बारे में समझा रहा है, ये तुमको रेशियो बता रहा है। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी तुमको क्या बोल रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। क्लियर स्टूडेंट? I think this is understood to you. Clear? Now we are going to move towards the fourth formula, intensity of magnetization। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट तुम्हारे लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, I is equals to m by b। I is equals to m by b means it is the ratio of
It is the ratio of intensity of magnetization to the magnetic volume. ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, दिख रहा है सबको, कॉपी कर लो, I इज इक्वल टू m बाई v, मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक, ये तुमको पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वैल्यू भी लिख देती हूँ, रेशियो नहीं लिख देंगे, बस डायरेक्ट लिख देती हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल टू इट्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई बात, मींस मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। I इज इक्वल टू m को हम क्या लिख सकते हैं, पढ़ाया है तुमको, स्मॉल m इंटू ठीक है, और क्या v को क्या लिख सकते हैं, v मीन्स तुम्हारा वॉल्यूम, a इंटू एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, a इंटू 2l। सबको समझ में आ गया, दिस 2l इज कैंसिल आउट एंड दिस विल बी m by v। So it depends on the question which formula you have to use. Either you use m by v or you use m by a. Clear student? I think it is visible to everyone. I is equals to m by a. Clear student? This is also a vector quantity. Okay student? Now I have to give you the last formula, that is magnetic susceptibility. ससेप्टिबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, चाई से। इसको क्या बोलते हैं, चाई, CHI। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, चाई। सबको समझ में आ रहा है, दिस इज शोन बाय XM, एक बहुत बड़ा सा X है जिसको हम कैसे करते हैं, X, जिसको हम चाई बोलते हैं, मैं बगल में लिख देती हूँ चाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, I बाई H। ये तुमको क्या समझाएगा, I बाई H। ये तुमको क्या समझाएगा स्टूडेंट, I बाई H मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या समझा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, इट्स अ वेरी टफ डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन to the magnetic intensity. They both are same value, so when they cancel out they are dimensionless. इसकी वैल्यू जब भी तुमको मिलेगी वो डायमेंशनलेस मिलेगी। ससेप्टिबिलिटी, ध्यान से सुनो, एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमिबिलिटी में रिलेटिव परमिबिलिटी भी होती है, जो मैंने समझा दिया, इट इज कंपेयर्ड विद द फ्री स्पेस। और ये क्या होगी तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी सबको समझ में आया, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी मींस इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। समझ में आए? ये सारी क्वांटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि इनके यूज अभी होंगे। लास्ट में एक आई थिंक दिस वाज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, हाइस्ट्रेसिस, तो उसमें हमको आई और एच की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली पूरा ग्राफ ही तुम्हारा आई और एच के बेस पर है। अगर वो डिलीटेड नहीं हुआ तो आई थिंक नॉट डिलीटेड, पैराडायाफेरो डिलीट हो गया है, उसकी प्रॉपर्टीज डिलीट हुई है, तो वो मैंने नहीं किया। अब डायरेक्ट वो पूरा टॉपिक मुझे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको चाई बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात सबको? क्लियर है ये सबको? ये वाला क्लियर है? यहाँ पर हम इसको और एक चीज और लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, ये भी तुम्हारा होता है। ठीक है, तो मैंने सबके डेफिनेशंस लिख दिए हैं, सबके फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, समझा दिया है किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या डेफिनेशन है। सो प्लीज रिवाइज इट एंड डू इट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this is all for today's video. Tomorrow we are going to meet again with a new fresh topic. Okay student, thank you.